Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be reading about the Mauryan dynasty which existed from the 324 BC to 187 BC. It was very important as it ruled over maximum parts of India except for Kerala, Tamil Nadu and Northeast India. So it was first subcontinental empire at that period of time. Then we can see that there are evidences from Arthashastra of Kautilya, Indica of Megasthenes, and the Junagadh inscription of Rudradaman and the Sudarshana Lake construction during Chandragupta's reign. We can get also information from the literary sources like Hemachandra's Paristita Parvana, which is about the connection of Chandragupta with Jainism. Then we can see the Mudra Rakhesh by Vishaka Datta, which is about the clever machination of Kautilya against the enemies of Chandragupta. Then Dandin's Dasakumar Charitra, Kadambari by Banavatta, and the Trinity of Buddhist text, which gives an account of Chandragupta's life. So we can see that what is there in Kautilya's Arthasastra. In Kautilya's Arthasastra, it is about the statecraft, irrigation, agriculture, how to rule a state, the diplomacy, war. It is a science of statecraft in short. It consists of 15 books or adhikaranas. It is about dharma and karma, and it is Arthasastra also summarizes the taxation, trade, etc. And Kautilya is known as Machiavelli of India. He is also known as Vishnu Gupta, Chanakya, etc. And then we can see from Megasthenes Indica. Megasthenes was a Greek traveler ambassador which was sent by Seleucus Nicator. He came to India. He saw that Indians are honest and of high moral values. He also saw that the flora, fauna, the society of India, and described it in his book Indica. And then he saw that Krishna is referred to as Hercules or Dionysius, Dionysus by Greeks. And the only mistake he did was he compared the Indian values and Indian society with the Greek society and Greek philosophy. Then, for example, Megasthenes was influenced by Herodotus' classification of the Egyptian society into seven classes based on profession. So, same thing he did for India. And Megasthenes did identify two of the most important aspects of Indian caste system: endogamy and hereditary occupation. देन विल सी दैट मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्ता मौर्य, जो मतलब कि लार्ज आर्मी, मतलब नंदस से उनको लार्ज आर्मी मिली थी, जिसको यूज़ करके वो नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुला इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट को कंकर कर गए. फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उनके जिक्र मिलेगा, जैसे महावंसर, मिलिंदपन्नो, दिव्य बदन, दीघ निकाय. ये मतलब कि इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है. फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एल्डर सन थे ऑफ मौर्य, सन ऑफ नंद किंग सर्वत सिद्धि एंड अ मूरा डॉटर ऑफ अ हंटर. फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड आउट किया था मौर्यन डायनेस्टी को अपने मेंटर कौटिल्य के द्वारा. चंद्रगुप्त मतलब पहले खुद को पंजाब में इस्टेब्लिश किए और फिर ईस्टवर्ड मूव करना शुरू किए वो. तो ट्रेडिशनल बिलीफ के हिसाब से चंद्रगुप्त ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो मोरल स्ट्रैटेजी मेनली थी. मतलब कि उन्होंने देखा कि एक वुमन ने अपनी बच्ची को, मतलब कि बच्चे को वो डांट रही थी क्योंकि वो बीच में से खा रहा था और गर्म था उस ये. तो वो क्या किए कि साइड से एक मतलब कि अपना स्टेट मतलब कि इमर्ज करके फिर ईस्टवर्ड वो बढ़ने लगे. मतलब कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी. उनको सैंड्रोकटस बोलते थे ग्रीक स्कॉलर्स. और फिर हमें मतलब कि ये भी एविडेंस है कि अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त से मिले थे, ये एविडेंस भी हमको मिलता है. उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस ने एक एम्बेसडर भेजा था जो इंडिका लिखे, कौन, हमारे मेगास्थेनेस ने लिखा था. फिर जो मौर्यन एम्पायर के चीफ आर्किटेक्ट इनको बोला जाता है. और चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था. श्रवण बेलागोला जो मैसूर में है उस हिल्स में गए थे भद्रवायु के साथ, और सालेखेना बट डेथ बाय स्लो स्टार्वेशन उन्होंने अपनाया था. तो चंद्रगुप्त आए इन्होंने ये कब आए, ये आए हमारे 324 टू 297 BC तक ये रुके. तो फिर ये आके कौटिल्य के थ्रू इन्होंने अपना
मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, काफ़ी एक्सपैंड किया, मतलब कि एक तरफ से पंजाब में खुद को इमर्ज करके फिर ईस्टवर्ड जाने लगे, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। फिर इन्होंने जैनिज्म को अपनाया, श्रवणा हिल्स में गए और वहाँ पे भद्रवायु के साथ फिर साले खाना या स्लो टावर्सन से डेथ किया। फिर आते हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा को बोलते हैं अमित्रोचेट्स, ग्रीक्स बोलते हैं, जबकि महाभाष्य जो कि बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है उसमें उनको अमित्रघात, किलर ऑफ एनिमीज बोला जाता है। तो बुद्धिस्ट सोर्सेस में हमें ये देखने को मिलता है, महाभाष्य, सॉरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं, महाभाष्य इज जैनिज्म टेक्स्ट, जिससे हमें पता चलता है कि उनको अमृता घात बोला जाता है और ग्रीक्स बोलते थे उनको अमृतोचेट्स, डेस्टर ऑफ फोर्स। तो आजीविका सेक्ट जो एक सेक्ट है उसमें भी हमें बिंदुसारा के बारे में कुछ कथाएं और उनकी कहानियां सुनने को मिलती है। और उन्होंने लैंड बिटवीन द टू सीज, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो लैंड है उसको कंकर किया था उन्होंने। और ग्रीक सोर्सेस से पता चलता है कि उनका वेस्टर्न किंग्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस था, जैसे कि सीरियन किंग जो कि एंटिकोस हैं, डेमाकस हैं, वो मतलब एम्बेसडर भी भेजे थे बिंदुसार के कोर्ट को। प्लीनी मेंशन करते हैं किंग टॉलेमी टू फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट वन डियोनसियस एज एन एम्बेसडर टू इंडिया। तो किंग टॉलेमी जो इजिप्ट के थे वो भी एम्बेसडर भेजे थे, सीरिया से भी एम्बेसडर उनको भेजा गया था। तो मतलब कि काफ़ी कनेक्शंस था उनको दूसरे देशों के साथ। दिव्य वदन में हमको देखने को मिलेगा कि उनके बेटे अशोका के बारे में भी मेंशन्ड है, जो मतलब कि वीकेंड मिनिस्टर्स के रिबिलियन को तक्षशिला में ख़त्म किए थे। इन्होंने लास्ट में आजीविका सेक्ट को ज्वाइन किया। पहले उनके पापा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैनिज्म को ज्वाइन किया, इन्होंने आजीविका सेक्ट को ज्वाइन किया था। और उनके रूल में मतलब कि बहुत पूरा साउथ तक मौर्यन सुजेरेंट के अंदर बाकी सारे स्टेट्स और किंग्स आते थे। ये वो जो मैप है जो कि हम देख सकते हैं कितना मतलब कंकर किया था, फ्रॉम द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान रीजन टू द मतलब कि ऑलमोस्ट टू हाफ ऑफ द तमिलनाडु, आंध्रा, मतलब केरला रीजन के थोड़ा सा छोड़ के और थोड़ा सा तमिलनाडु को छोड़ के, मतलब मोस्टली रीजन को, ईस्टर्न इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के मोस्टली रीजन को कंकर किया था। दैट वाज द माइट ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड इट्स किंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर आते हैं अशोका जो कि आते हैं 268 टू 232 BC तक रूल करते हैं, 268 BC में आते हैं। तो वो मतलब कि उन्होंने, उनको 4 साल लगे अपने सक्सेशन कन्फ्लिक्ट को ही ठीक करने में। मतलब बिंदुसार चाहते थे उनके सन सुसीमा उनको सक्सीड करे, लेकिन अशोका को बिंदुसार के मिनिस्टर्स चाहते थे। तो एक मिनिस्टर राधा गुप्ता के थ्रू उन्होंने अपनी 99 ब्रदर्स को मारे और फिर उनको मगध का थ्रोन मिला था। उन्होंने मतलब उनको पहले वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन अपॉइंट किया गया था, किसके रेन पे, बिंदुसारा के रेन में। इस तभी तो उन्होंने तक्षशिला की वो झगड़े को क्वेल किया था। फिर बिंदुसारा के रेन में उनको वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन मतलब कि रिक्रूट किया गया था। इनको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे बुद्धाशक्य, धर्माशोक, देवनम प्रिय, प्रियदासी, और मतलब कि ये सारे नेम उनको दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो दया नदी के रिवर में हुआ था, वो चंडाशोक से धर्माशोक बने थे, फिर बुद्धिज़्म को अपनाए थे, वो तो काफ़ी फेमस ही रहा है। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोका वदना, जिसमें अशोक mother was daughter of Brahman of Champa named Subrandagi. According to a belief, Ashoka got his name. Ashoka means without shadow, from the fact that his birth resulted in the reunion of his mother and father, who were otherwise separated due to a palace intrigue. तो आई एम नाउ विदाउट सरो, इसलिए उनका नाम अशोका आया। माँ बाप मिल गए, खुशी हो गई, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम भी वैसा ही रखा। दीपवंश और महावंश से हमें क्या पता चलता है कि उनकी जो वाइफ है महादेवी, वो मतलब कि महादेवी हु लेटर बिकम द मदर ऑफ महेंद्र एंड संघमित्रा, द सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन ऑफ अशोका, जिन्होंने उनको बुद्धिस्ट की प्रोपगेशन में बहुत मदद किया। फिर हमें बाकी मतलब इन्हीं दीपवंश महावंश से पता चलता है उनके बाकी सारी क्वींस के बारे में, पद्मावती, तिसरकिता, करुबकी के वजह से ही तो वो वॉर हुआ था, बोलते हैं इट इज़ वन ऑफ द रीजन। अलाहाबाद के कोसम पिलार एडिक्ट में करुबकी का नाम मेंशन्ड है, एंड शी वॉज अ मदर ऑफ प्रिंस तिवारा, ओनली सन ऑफ अशोका
टू बी मेंशन बाय नेम इन इंस्क्रिप्शंस। तिवारा के मदर थी करुवाकी, और उनके एक इलाहाबाद और मतलब इलाहाबाद कोशम पिल्लर एडिक्ट में उनकी नाम मेंशनड है। इनका जो एम्पायर था वो हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक, अफ़गानिस्तान, बालूचिस्तान और पूरा मतलब कश्मीर, नेपाल सब तक मतलब कि गया हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि उनके हेलेनिस्टिक कंटेम्प्रेरीज या फिर उनके क्या बोलते हैं कि ग्रीक में, उस जगह में सब, ग्रीस में ये सब, सीरिया में ये सब जगह में कौन कौन से रूलर थे? एंटिकियोस थे, टोलेमी थे, एंटीगोनस थे, मगास थे, अलेक्जेंडर थे। ये इनके सारे कंटेम्प्रेरीज है। ये बुद्धिज़्म को बहुत बढ़ावा दिए, ये हमें पता है। धर्म महामतास को अपॉइंट किए थे, यस। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने लीड किया था, और फिर मतलब लुम्बिनी को काफ़ी विजिट करते थे। फिर आते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ के टाइम पे मतलब मौर्यन एम्पायर वॉज इट एट इट्स रूइंग्स एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। फिर ख़त्म हो जाता है। पुष्यमित्र सिंह शुंग जो है वो बृहद्रथ को मार देते हैं 187 BC में। फिर आता है शुंग डायनेस्टी। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन और अशोकन धामक के बारे में हम देखेंगे। काफ़ी सारे मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट उन्होंने करवाया था। ये जो मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट में लैंग्वेजेस क्या रहे थे? लैंग्वेजेस रहे थे हमारे ब्राह्मी, खरोस्ती, प्राकृत, ग्रीक लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज। प्राकृत तो इसीलिए था क्योंकि वो एक कॉमन मैन का लैंग्वेज था। खरोस्ती क्यों? और बुद्धिज्म कॉमन मैन के लैंग्वेज को अपनाता है। खरोस्ती क्यों? बिकॉज ऑफ द पर्शियन इन्फ्लुएंस। देन ग्रीक लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज, बिकॉज ही हैड एम्बेसडर फ्रॉम ग्रीस, एम्बेसडर फ्रॉम ऑल दीज रीजन्स, तो उनको उस लैंग्वेज का मतलब कि इन्फ्लुएंस था। और ये सारे जो मतलब कि लैंग्वेज में थे, इनको जेम्स प्रिंसेप ने, जो मतलब फेमस प्रिंसेप घाट एट कोलकाता, तो जेम्स प्रिंसेप ने इस सब को डिसाइफर किया था। फिर हम देखते हैं कि हाँ, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में कोई बुद्ध के टीचिंग के की आइडियाज़ नहीं है, जैसे एट फोल्ड पाथ, फोर नोबल ट्रूथ, गोल ऑफ निबान, ये सब नहीं है। लेकिन मतलब कि बुद्धिस्ट के जो कोर आइडियोलॉजी है अबाउट धम्म एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में, धम्म के बारे में बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटनेस, रिलीजियस ऑर्डर, conformity to a social society, ethics, dignity of human life, compassion, चैरिटी, ये सब के बारे में। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है। क्या क्या है हम देखते हैं। तो पहला जो रॉक एडिक्ट है, इट इज़ अबाउट एनिमल सैक्रिफाइस को प्रोहिबिट करना। बुद्धिज़्म जो है वो मतलब कि ये सब चीज़ों को रोकता था। सेकेंड एडिक्ट में है कि हम ह्यूमन एनिमल्स को मेडिकली ट्रीट करेंगे, मतलब कि प्लांट करेंगे बेनिफिशियल मेडिसिनल हर्ब्स। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर मोर अबाउट prohibition of flora and fauna, like prohibition of animal sacrifice, and then planting medicinal herbs, then giving medical treatment to human and animals. थर्ड एडिक्ट में हम देखते हैं कि लिबरल एटीट्यूड हमको ब्राह्मण और श्रामण के लिए मतलब अडॉप्ट करना चाहिए, धर्मा को प्रीच करना चाहिए। फिर हम देखते हैं फोर्थ एडिक्ट इज भेरी घोषा धम्मा घोषा। भेरी घोषा मीन्स क्या होता है? जो वॉर ड्रम बजता है वॉर की शुरुआत से, उसको रिप्लेस किया गया धम्मा घोषा से, जो कि कलिंगा वॉर के बाद इन्होंने मतलब सोचा था। फिफ्थ एडिक्ट में धम्मा महामतस, मतलब एक स्पेशल कैडेट ऑफ ऑफिसर जो धम्मा की स्प्रेड करेंगे। तो पहले में हमने एनिमल सैक्रिफाइस को देखा था, फिर मेडिसिनल हर्ब्स और हेल्पिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस को देखा था, फिर हमने देखा था लिबरल अप्रोच टू ब्राह्मण एंड समाना, फिर हमने फोर्थ में देखा था कि वेरी घोषा से धम्मा घोषा, फिफ्थ में हमने देखा कि एक स्पेशल कैडेट ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड महामता फॉर द प्रमोशन ऑफ धम्मा विद इन द किंगडम। सिक्स्थ एडिक्ट में हम क्या देखते हैं? मंत्री परिषद एंड ऑफिसर्स लाइक पुलिसानी एंड पत्तिवेदकस, ये मतलब रिपोर्टर्स हैं, ये इन ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करना। सेवेंथ में हम देखते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल सेक्ट्स। एट्थ में हम देखते हैं रॉयल प्लेजर टूर्स बिहार यात्रा रिप्लेस्ड बाय धम्मा टूर्स। प्लेजर नहीं, धम्मा के स्प्रेड के लिए। तो ये था रिप्लेसमेंट। कहाँ कहाँ पे हुआ? एक तो हुआ हमारे फोर्थ में हुआ, एक हुआ हमारे एट्थ में। नाइन्थ एडिक्ट में हम देखते हैं इट इज़ अबाउट द मोरल कंडक्ट एंड क्रिटिसाइजिंग द यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज, ये सब।
अब 10th में हम क्या देखते हैं, 10th में देखते हैं कि किंग को कोई फेम या ग्लोरी नहीं चाहिए। 11th में गिफ्ट ऑफ धम्मा इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। 12th में इथिजी का महामता मतलब महामता हु इज़ इन द चार्ज ऑफ वुमेन वेलफेयर। 13th एडिक्ट में कलिंगा वॉर जो कि चेंज कर देता है अशोका के मन को, पूरे एटीट्यूड को, ये 13th एडिक्ट में है अबाउट द कलिंगा वॉर। फिर हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे पिलर एडिक्ट्स हैं। एक लौरिया अररज में है, एक लौरिया नंदनगढ़ में है, एक रामपुरवा में है, मेरठ में, टोपरा में है, सारनाथ में है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि दो पिलर जो टोपरा और मेरठ में है वर शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से दो पिलर को शिफ्ट किया था दिल्ली। और देर आर पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे कि बुल कैपिटल एट रामपुरबा, लायन कैपिटल एट वैशाली, and the Kollam pillar which is without capital, Kollam pillar which is without capital, then the lion pillar in Delhi and Vaishali, and then bull pillar in the Rampurba। अशोकन पिलर्स के ये सारे फीचर्स थे। उनके फीचर्स में से मतलब वो सारे पिलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म एंड डायमेंशन के होंगे। सैंडस्टोन से बनते थे, मोनोलिथ से, एक ही स्टोन से मतलब कार्व होते थे वो। लस्टरस पॉलिश सरफेस था, इनका कोई बेस नहीं था। बेल कैपिटल इनके ऊपर रहता था मोस्टली। बेल कैपिटल में एक एबेकस या प्लेटफॉर्म हुआ करता था। इन्होंने मतलब कि काफ़ी सिंबल्स की यूज़ किया, जैसे बुलबुल मतलब कि ये क्या होता है, फर्टिलिटी का सिंबल होता है। फिर हम देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट का क्या मतलब होता है, बोधिसत्व, या फिर मतलब कि बुद्धा एंटर्ड हिज मदर्स होम इन द फॉर्म ऑफ वाइट एलिफेंट। फिर लोटस, लोटस मतलब प्योरिटी। लायन मतलब कि रिप्रेजेंट्स बुद्धा। लायन, लोटस, बुल, देन मतलब कि स्पोक्ड व्हील मतलब धर्मचक्र। हर्ष मतलब डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला मतलब पिलर एडिक्ट है, इट इज़ अबाउट सोशल कोड। सेकेंड पिलर एडिक्ट जो है वो है लेस अमाउंट ऑफ सीन। थर्ड पिलर एडिक्ट में सोल एंड सीन। और फिफ्थ पिलर एडिक्ट में दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट, जिसमें कि एनिमल किलिंग के अगेंस्ट बोला गया है। इलाहाबाद में क्या है, कोसम्स एडिक्ट। कोसम्स एडिक्ट, इसमें समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शंस हैं। समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन से कोसम एडिक्ट, और ये इलाहाबाद में है। अशोका वॉन्स मेंबर्स ऑफ संघा अगेंस्ट कॉजिंग डिवीजन इन द रैंक्स। फिर हम देखते हैं गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन बाय रुद्रदमन। रुद्रदमन के द्वारा गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन काठियावाड़। फिर कंडार, कंडार मतलब कि बाइलिंगुअल ग्रीक इसमें है, लिखा गया है। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन नेपाल। रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन नेपाल, टैक्स कंसेशन के बारे में रुमिनदेई में लिखा गया है। रुमिनदेई नेपाल, निगाली सागर नेपाल, कंडाहार ग्रीक, किरना रॉक बाय रुद्रदमन काठियावाड़। इसमें रुद्रदमन ने जो सुदर्शन लेक बनाया था उसके बारे में है। सॉरी, रुद्रदमन ने लिखा था कि सुदर्शन लेक जो है वो पुष्यगुप्त के द्वारा कंस्ट्रक्टेड हुआ था। कलिंग एडिक्ट, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, बाहुली एंड जौगड़ा। एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट 1 में हमें पता चलता है कि वो बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं करके अशोका। अशोका की लिगेसी में हम देखेंगे कि उन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया था। उन्होंने कलिंगा को अपने मौर्य डायनेस्टी में ऐड नहीं किया, मतलब ऐड ही नहीं किया। उन्होंने पूरे कंट्री को लैंग्वेज वन धम्मा के इसमें बांध के रखा। फिर वो टॉलरेंस उनकी अच्छी थी, रिस्पेक्ट था अबाउट अदर रिलीजन्स एज वेल, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बना के रखे थे, पीस और नॉन एग्रेशन का प्रमोशन किया। निकाय मतलब क्या होता है, ट्रेंड ऑफिशियल्स। मंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर। पुरोहित मतलब हाई प्रीस्ट। युवराज मतलब हेयर अपरेंट। समहर्ती मतलब चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, समहर्त्री। समिंधत्री मतलब ट्रेजरर। अक्षपतलम मतलब रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिस। द्वारविका मीन्स चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंस। उत्तरपट मतलब तक्षशिला। दक्षिणपट मतलब सुवर्णगिरी। ईस्टर्न इंडिया मतलब तोशाली।
कलिंग मतलब तोशाली धौली। अवंती रथम मीन्स उज्जैन। हम इसमें देखेंगे मौर्यन किंगडम में जो प्रोविंसेस थी उनको डिवाइड किया गया था प्रदर्शिका करके, और उस डिवीजन को डिवाइड किया गया था और उनको हेड कर रहे थे प्रदेशिका, और फिर उनका कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं था। डिविजन्स वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द ऑफिशियल्स कॉल्ड राजुका। प्रदेशिका फिर आते हैं राजुका। क्लर्क्स को बोलते हैं युक्ताज। टैक्सेस जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्थानिकाज। प्रॉपर रिकॉर्ड एंड अकाउंट जो रखते हैं उनको बोलते हैं गोपाज। इम्पॉर्टेंट कुछ ऑफिशियल्स है जैसे पन्याध्यक्ष मतलब ये ट्रेड प्राइस फिक्सेशन वो। संस्थाध्यक्ष मीन्स मार्केट के सुपरिटेंडेंट। रूपादर्शक मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। पौतवदक्ष मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। बरावर और नागार्जुनी हिल्स में ये पता चलता है कि आजीविका एस्थेटिक्स को अशोका ने केव्स गिफ्ट किए थे। 4 सोर्सेस ऑफ लॉ जो कौटिल्य ने मेंशन किया था। धर्म से हम अपना लॉ को देखते हैं, व्यवहार से, चरितम से, राजशासन से। और उनका जो पॉलिसी था, एक पॉलिसी ऑफ मतलब कि अलाई, पॉलिसी ऑफ संधि, पॉलिसी ऑफ विग्रह, पॉलिसी ऑफ आसना, पॉलिसी ऑफ याना, ये सब था कौटिल्य का। मौर्यन सोसाइटी में देखें तो वर्ण सिस्टम था, सोशल हायरार्की थी, वुमेन और मेन में डिवीजन था, वैश्य ट्रेड करते थे, और फिर दासस भी थे। स्लेव सिस्टम इस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, जो कि बहुत बुरी बात है इस पीरियड के टाइम में। और अगर कोई दासी ने मास्टर के सन को मतलब कि मास्टर के सन को बियर किया तो उस मतलब कि बच्चे को फादर के लेजिटमेट चाइल्ड के हिसाब से जाना जाता है। और अगर हम आर्ट एंड कल्चर देखें तो जो मतलब मौर्यन आर्ट एंड कल्चर में रॉक कट और स्तूपा आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस था, स्टोन मतलब कट कल्चर था। फिर हम देखते हैं कि अशोकन पिलर्स जो हैं एट रामापुरबा, डौरिया, नंदनगढ़ एंड सारनाथ present excellent examples of stone culture that developed in this period. All these pillars are circular and monolithic and are made up of sandstone found at Chunar near Mirzapur in UP. भद्रबाहु ने कल्प सूत्र करके लिखा था मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम में। कंगनहल्ली कर्नाटका में अशोका की स्टोन पोर्ट्रेट है। ये धौली केव एलिफेंट, ये सांची स्तूपा, ये दीदारगंज की यक्षिनी, ये लोमस ऋषि केव, ये है हमारा रिंग वेल जो कि पुराना किला न्यू दिल्ली में पाया गया था। इस टाइम पे आयरन और आयरन सप्लीमेंट्स की यूज़ होती थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, NBPW पॉटरी आर्टिफैक्ट्स थे, रिंग वेल्स थे। और फिर हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स और NBPW के मतलब कि पॉट शेड्स के एग्जिस्टेंस मिलता है उड़ीसा में, बांग्लादेश में, और फिर आंध्रा में और कर्नाटका में। और हमारे नेशनल एम्ब्लेम में जो 4 अलायन कैपिटल है विट इज़ फ्रॉम द अशोकन पिलर एट द सारनाथ। मौर्यन आर्ट में काफ़ी ज़्यादा पर्शियन इन्फ्लुएंस था, क्योंकि पर्शियन किंग्स, इजिप्टियन किंग्स, सीरियन किंग्स के साथ उनका काफ़ी मतलब कि रिलेशंस थे। तो मतलब कि हमें जो एनिमल कैपिटल्स, पॉलिश सरफेस, ये सब मतलब कि उसी का एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म में बुद्धस की भी ऊपर मतलब कि आइडल के ऊपर पर्शियन और एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है।
फिर मौर्यन पिलर्स में बेस एब्सेंट रहता है। मौर्यन लोटस में टिपिकल बल्ज रहता है, लेकिन पर्शियन में बल्ज नहीं रहता है। पर्शियन पिलर्स का फ्लूटेड सरफेस होता है, जबकि मौर्यन पिलर स्मूथ होते हैं। मतलब कि मौर्यन टाइप abacus एंड इंडिपेंडेंट एनिमल्स कार्व्ड इन द राउंड क्राउनिंग आर एब्सेंट इन पर्शियन। फिर मौर्यन किंगडम ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म होता है? ब्राह्मणिकल रिएक्शन की वजह से, जो ये बुद्धिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। शुंगर्स आते हैं, कन्वास आते हैं, सातवाहनस आते हैं, तो ये लोग ख़त्म करवाते हैं। फिर देखते हैं कि मतलब कि करप्शन होता है, इसकी वजह से भी ख़त्म होता है, फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी। और मतलब कि अशोका थे, वो इतना ध्यान नहीं देते थे अबाउट द किंगडम, अपने धर्म के प्रमोशन में व्यस्त रहते थे। मटेरियल कल्चर स्प्रेड हो गया, प्लस सुंगर्स आ गए, प्लस मतलब कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को इन्होंने इग्नोर किया, जिससे ग्रीक वगैरह ये सब इन्वेट करने लगे पूरे इंडिया को। थैंक यू फॉर टुडे। विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।